Students, in this video we are going to solve this question which has been asked in JEE Advanced 2026 in paper 1. So let us start solving the question. The causes static cycle of monoatomic ideal gas. Gas is monoatomic and the process A to B is isothermal followed by an isochoric process. This is isochoric process. Followed by an adiabatic process from C to A. The volume of the gas are V1, V2, and this is point A, this is B, this is C. This cycle has input, has a heat input Q in, output Q, rejected heat is Q out. Then the efficiency of the cycle is given like this. So this is written, relative value is given, 4 options are given, and multiple options are correct. So just draw another figure to solve the question. So this has been given like this. So this point is A, B, C. Here the volume is V1. Process is going like this. यहाँ पे V2 है. So this is isothermal. To be process was isothermal. Temperature constant. So here if temperature is T1, here is also T1. Suppose and this P to C is isochoric, and the volume constant, the P to C is isochoric. So here temperature will change T2. So we have 3 points and temperatures हमने decided. तो यहाँ पे this is BC में work done 0 होगा. So all the heat is actually rejected out or given out is actually equal to delta Q for BC. इस डेल्टा यू के बराबर है फॉर बी सी. तो इस पर क्या होगा, हीट रिजेक्ट होगा जस्ट बिकॉज प्रेशर इज डिक्रीजिंग. प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा होगा. दैट वाई हीट रिजेक्टेड. बी सी में हीट रिजेक्ट होगा. ए बी में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है एंड इट इज़ एन आइसोथर्मल प्रोसेस. तो जितना भी हीट दिया है वर्क डन में कन्वर्ट होगा तो इट इज़ इक्वल टू इन ए बी हीट देना पड़ेगा टू गेट द वर्क डन. तो nRT ln temperature is T1, तो nRT 1 ln V2 by V1. तो दिस इज फॉर AB एंड BC के लिए क्या होगा, डेल्टा Q बराबर होगा NCV डेल्टा T. डेल्टा T इज वॉट, T2 minus T1, T2 minus T1. So CV for what? CV for monoatomic gas is 3R by 2. So it is N 3R by 2. डेल्टा क्यू फॉर पी सी आ गया हमारा T2 minus T1. सो डेल्टा क्यू फॉर बी सी आ गया हमारा एन 3R by 2 T2 minus T1 एंड डेल्टा क्यू फॉर ए बी आ गया हमारा nRT1 ln V2 by T2. This is in the B given or this is heat rejected out. So now let us see the options. Options है, if पहला V2 by V1 heat हो जाएगा then the process heat released in the process BC is smaller than the heat absorbed in the process AB. Okay, तो मतलब ए बी आपका डेल्टा क्यू ए बी बड़ा है डेल्टा क्यू बी सी से वैल्यू वाइज. ये हमें पता करना है अगर V2 by V1 is 8. So let us find out the temperature. This C to A, C से A एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसकी वजह से आपका A C पे T2 टेम्परेचर है, A पे T1 टेम्परेचर है. T2 टेम्परेचर से हम T1 टेम्परेचर पे जा रहे हैं, P2 वॉल्यूम से P1 वॉल्यूम पे जा रहे हैं. लेट अस से P2 प्रेशर से P1 प्रेशर पे. तो सारा प्रोसेस एडियाबैटिक है एंड गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज 5/3. टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन इज दिस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, मीनिंग T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1. When we are going to solve this T1 V1, you can write as T2, you can write this as T1 by T2 is equal to T2 by V1 gamma minus 1 and V2 by V1 8 gamma minus 1
T1 by T2 is 8. 5 by 3 minus 1. 8 by 5 by 3 minus 1 is 4. You can solve it by yourself and get the answer out. So T1 is actually equal to 4 times of T2. So this is the value. T1 is 4 times of T2. तो अब हम देखते हैं PC हमारा कितना आ जाएगा 3NR by 2, और you can write T2 is equal to T1 by 4. So T1 by 4 minus T1. So when you solve this, you will get 3R by 4. नेगेटिव नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, -9. हम मॉड को हमको केवल वैल्यू वाइज देखना है. तो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 3 3 9 9 8. 9 by 8 NR T1 आएगा. यू कैन क्रॉस चेक द वैल्यू. सो माइनस ऊपर आएगा, ये आपका 3NR by 2. दिस विल कम आउट टू बी 3 T1 by 4. दिस विल comes out to be minus 9NR T1 by 8. So delta Q of BC की वैल्यू, that is heat rejected की वैल्यू आएगी 9 by 8 NR T1, and its value is, when you write delta Q AB की वैल्यू आई है आपकी NR T1 ln V2 by V1 की वैल्यू 8 है. तो ln 8 मीन्स 3NR T1 ln 2. ln 2 is 0.7. 3 into 0.7 is 2 point something, 2.1 NR T1. So this you can see this is 2.9 NR T1 and this is 9 by 8 something 1.1 you can write. So you can clearly see delta Q of AB is greater than value wise delta Q of BC. पहला ऑप्शन सही है. हीट रिजेक्टेड इज, दैट इज हीट रिजेक्टेड दैन इन BC में हीट रिजेक्ट हुआ है. ठीक है, BC की वैल्यू कम है, स्मॉलर देन. ठीक है, तो पहला सही हो गया. देन सेकेंड, फॉर अ गिवन वैल्यू V2 by V1 एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. पहला. दूसरा देखते हैं. दिस इज गिवन लाइक दिस, Q in minus Q out, Q in minus Q out divided by Q in can be written as 1 minus Q out by Q in. Our Q out is what? BC. Our Q out is BC. 1 minus Q BC value wise and Q of AB. तो BC की वैल्यू हमने निकाली है अभी. BC is 1.1 NR-T1. 1.1 NR-T1. कुछ वैल्यूज गलत हो, यू कैन करेक्ट मी. ठीक है, और ए बी की वैल्यू आई है 2.1 NR-T1. ठीक है, 2.1 NR-T1. तो T1 कैंसिल हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है एन भी कैंसिल हो जाएगा, आ रहा है जो भी आएगा आ जाएगा. बट दिस वैल्यू फॉर गिवन वैल्यू V2 एंड डज नॉट डिपेंड द टेम्परेचर ऑफ द आइसोथर्मल. टेम्परेचर ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस वाज T1, तो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है. तो सेकेंड भी सही हो गया. थर्ड, V2 by V1 is equal to 8. द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट ए पे हमारा कितना टेम्परेचर था? T1. 4 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ T2. सी पे हमारा T2 था. देखा था कि T1 बराबर आया था 4 T2, तो सही आया ना. तो यहाँ पे हमारा आया था टेम्परेचर हाँ T1 जो भी आपका ए पे जो टेम्परेचर है इसे सी पे 4 टाइम्स टेम्परेचर एट सी, तो सही आ गया. यू कैन वेरीफाई. फोर्थ विल कम आउट टू बी रॉन्ग. प्रेशर ऑफ द गैस इज 4 टाइम्स द प्रेशर ऑफ द गैस एट पी. अगर V2 by V1 दें तो P1 इज इक्वल टू P2 गामा यू कैन राइट. तो ए पे प्रेशर आपका यहाँ पे P1 है. ठीक है, और बी पे बात कर रहे हैं, बी पे बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर हमें पता है. तो दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस ना. P1 इज इक्वल टू P2 V2.
आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 वी कैन राइट. तो P2 by V1 इज गिवन, तो P1 by P2 इज V2 by V1 8. So P1 is 8 times P2. So this is option is correct, wrong. So A B C is the correct option. So नेक्स्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हो गया. नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए. थैंक यू.